First of all, there is common myeloid precursor cell. From it, common myeloid erythroid precursor cell has become. It has differentiated. Now, from this cell, erythroblasts इससे रेटिकुलोसाइट्स इससे एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और कॉमन माइलॉइड प्रिकर्सर सेल कहां से बना था? होमो स्टेम सेल से। यस सर। अभी तक ये यहां तक ये है बोन मैरो में। रेटिकुलोसाइट्स भी बोन मैरो में रहता है। नहीं, रेटिकुलोस एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। एरिथ्रोब्लास्ट साइट तक रहता है बोन मैरो में। वन सेक, यहाँ क्या लिखा है? They contain high concentration of oxygen, damage red blood cells, induce in They contain high concentration, circulate blood vessels, capillaries, them in mammals. However, erythrocytes of almost कहाँ लिखा था erythroblast? Cells of erythroid lineage, erythrocytes or red blood cells also arise from a common myeloid precursor cell, sometimes referred to as common myeloid erythroid precursor. They contain high concentration, delivering oxygen, in mammals. Erythrocytes are anuclear, they are nucleated precursors. Erythroblasts extrude their nuclei in the bone marrow. बोन मैरो नॉर्मल प्रक्रिया यही है। वैसे क्यों ऐसा कहा, हमको कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि इन देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इन जब सीबीसी करते, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, ब्लड में क्या क्या सेल्स हैं, तो वी फाइंड रेटिकुलोसाइट्स आल्सो। ओके, although very small percentage of reticulocytes are found in the blood. So anyway, so at this stage it is nucleated till this stage, okay, at the reticulocyte, and till this stage it is in the bone marrow. Once ये जो है it has become denucleated, then it enters the blood circulation. From the bone marrow to blood it comes. तो डिन्यूक्लिएटेड होने के बाद क्या बना? एरिथ्रोसाइट्स। डिन्यूक्लिएशन होने की प्रक्रिया जो है वो यहीं पर होती है, रेटिकुलोसाइट टू एरिथ्रोसाइट्स। आपने सुना होगा विटामिन B12, फोलिक एसिड, सुना हो? These two components are required for the maturation of erythrocytes. अगर B12 और फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी हो जाता है, then maturation of erythrocytes doesn't take place.
and in that cell population you will find reticulocytes ज्यादा बढ़ा हुआ, and still the volume of RBC also increase. जो RBC mature हुआ है, in the process of the maturation it has not matured enough. रेटिकुलोसाइट थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम होता है, आरबीसी का उससे थोड़ा कम होता है, so volume should decrease. So in that process these two components are required. Deficiency of these two leads into increased packed cellular volume of RBC, a condition which is similar to anemic. Or megaloblastic anemia, the condition is called, as the name indicates, size of the RBC increases. You will say that size of the RBC is increased, but actually the reality is other way around, because the size of the RBC has not reduced in this maturation process. So this condition has arrived, which is called as megaloblastic anemia due to the deficiency of vitamin B12. तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये याद कर लो, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से कॉमन माइलॉइड प्रिकर्सर, कॉमन माइलॉइड एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर, फिर एरिथ्रोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट्स, फिर एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये जब तक न्यूक्लिएटेड स्टेज है तब तक बोन मैरो में है, और न्यूक्लियस लूज करने के बाद इट एंटर्स द सर्कुलेशन। ओके ओके सर। कोई और कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। ठीक है सर। बोलो। सर थोड़ा सिलेबस से हट के है थोड़ा सा। बोलो। जैसे कि सर स्टेम सेल सर हर एक ऑर्गन का अलग अलग होता होगा, तो सर पेपर सब में न्यूज सब में नहीं आता है कि सर लीवर का सर या पेनक्रियाज का या हार्ट का, तो उससे एक सेल निकाल करके सर फिर से जनरेट नहीं कर सकते हैं? क्या चीज? मतलब कोई ऑर्गन सर, जैसे कि लंग्स खराब हो गया थी, लीवर खराब हो गया, तो सर लीवर सर स्टेम सेल, लीवर का स्टेम सेल निकाल करके सर फिर से जनरेट कर ले अगर लैब में तो। हो सकता है, लेकिन लीवर में स्टेम सेल है? स्टेम सेल है लीवर में? यस। नहीं सर, ये मालूम नहीं है सर अभी। Yes, it is there. The cells which is having the regeneration power. सर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से तो बनाया जा सकता है ना? सर एम्ब्रियोनिक स्टेम बना से के बना सकते सकते हैं। बनाने के लिए फर्टिलाइज कराना पड़ेगा, जायगोट बनाना पड़ेगा ना कोई। हाँ तो सर वो होता है ना। You can do it, but these things are covered under ethical rules. हाँ यस सर, ये तो है, एथिकल रूल्स है, क्योंकि उसमें एक India is signatory of bioethics. बायोएथिक्स। यस सर। चुपके से करोगे, करते हैं लोग। चाइना बहुत काम कर रहा है, ये सब काम करता रहता है उल्टा पुल्टा, जैसे लाइगर बना दिया। अब बताओ, लायन का गैमीट और टाइगर का गैमीट दोनों को जोड़ के लाइगर, और लाइगर जिंदा भी रहा 22 साल तक। देखने में लगेगा आगे से लायन और पीछे से टाइगर। तो क्या कह रहे थे आप? स्टेम सेल पूछ रहे थे ना? यस, इट कैन बी डन, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, एंड अंडर द सर्टेन biological ethical approval. If the lab is approved for the research on stem cell, in that lab if you have interest to join, go there and do the research, stem cell research जहां होता है। ओके, तो stem cells
has the tremendous potential. It can generate into any type of cell. So any type of organ can be developed from stem cell. That is theoretically possible, and these things are being done also. These things are being tried also. Tissue engineering हो रहा है, organ manipulation हो रहे हैं. Many countries are doing. China is also doing. India maybe they are at the experimental stage. They are doing it, tissue engineering. Okay, and in future this will become a great tool, stem cell, your own stem cell, because this stem cell can give the organ immortality, in a sense you can say. Okay, but stem cells are identical cells. अब क्या हुआ, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है स्टेम सेल से ना. अब स्टेम सेल, अब अगर कोई आदमी सोचा कि मैं अपना बेटा अपने स्टेम सेल से ही बना दूं, कर सकता है, क्लोन बनता है. बना है ना क्लोन, सुने हो क्लोन? यस सर। यस सर। क्लोन बनता है, बना सकते हैं, लेकिन बैन है, बायोएथिकल रूल्स है. कुछ कंट्री इलीगली कर रहा है, चाइना करता है अपना छुपके से. तो क्लोन बना सकते हो. अब कोई आदमी थ्योरेटिकली चाहे कि मैं अपना बच्चा अपना ही स्टेम सेल से बना लूं, इवोल्यूशन हुआ, फिर आइडेंटिकल हो गया ना वो, आइडेंटिकल फादर आइडेंटिकल सन. सो अगेंस्ट इवोल्यूशन है दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया in human, and it will be introduced. Don't worry, in your lifetime you will see this. अब लेकिन उसके लिए सर किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में तो कर ही सकते हैं ना, उसके आप ट्रीटमेंट के लिए. करते हैं, डिजीज के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जा सकता है, बट द ब्रांच ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग इज स्टिल नॉट वेल डेवलप्ड येट, इज स्टिल इन द बडिंग स्टेज. क्यों? ऑर्गेनोजेनेसिस जब आप करोगे, मान लो किसी का आंख फूट गया, अब वो चाह रहा है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड पहले डोनेट किया हुआ है, क्रायो प्रिजर्व्ड स्टेम सेल. तो टेक्नोलॉजी अगर है तो नया आंख उसका बनाया जा सकता है फ्रॉम दैट स्टेम सेल. लेकिन उस आंख को बनाने के लिए 3 डायमेंशनली वो पूरा माहौल चाहिए वहां पर ना. जब एम्ब्रायनिक स्टेज में जब ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ था, दैट एनवायरमेंट, बिकॉज द आई हैज स्पेशल शेप, अकॉर्डिंग टू दैट शेप पूरा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क, नर्व का नेटवर्क, तो लाइक दैट एक टिश्यू इंजीनियरिंग, एक आर्किटेक्चर उसको पहले से 3D आर्किटेक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट 3-dimensional structure of the tissue or the organ can be formed around that architecture. Okay, so this is still under the developing stage. Research is going on. If we become successful, then this can be done, will be done, and this will be successful. Okay. और कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है? नो सर. बाबू जी सर। हो गया है सर या कुछ चाहिए? यस। नहीं नहीं नहीं। एक बार अटेंडेंस ले लें. यस सर. एक सेकंड बस. चलिए, कौन? आदिल तो बहुत बढ़िया भैया, आदिल अब तो क्लास में आने लगे हैं.
Very good. Adil is present. इसको जो प्रेजेंट अभी है बोल्ड कर दे रहे हैं. अनामिका इज प्रेजेंट सर। प्रेजेंट. सुबह नहीं थी क्या? नो सर, सुबह नहीं थे। बाबुल इज प्रेजेंट. दीपा प्रेजेंट. प्राची थी सुबह. विधि भी थी. दिलशाद है. शशिलता सुबह नहीं आए थे. प्रेजेंट. तस्नीम का तो कारण है. अच्छा. पूजा आई है. हाँ, पूजा भी सुबह थी. नेहा शेख भी थी. आदि तो है. चलो ओके, अटेंडेंस ले लिए हैं. चलो बाय बाय, टेक केयर. सर हाँ मेरा sir. नेक्स्ट क्लास नहीं हुआ है सर. क्या हुआ? मेरा प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन ये पी जो है मेरा हाईलाइट नहीं हुआ ज्यादा. सुबह था तुम? यस सर. हमको लगा सुबह नहीं था तुम. सर मैं भी सुबह में थी। अच्छा थे. ये छोटा क्या हो गया? बाबू ये क्या हो गया? अच्छा हम कर देंगे इसको, एक बार कट करना पड़ेगा लगता है. ओ प्रिंट कमांड ले लिया. रुक जाओ. कौन बोले थे अभी? बाबुल को कर देंगे. और कौन बोल रही है अभी? लड़की दवाई कौन थी? शशिलता थी। क्लास पूछ रहे थे सर. शशिलता. ठीक है मैं कर दूंगा. चलो बाय बाय. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके.